ओबेसिटी इज देयर, उनकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि हाँ हमारी मदर को थी, तो मैंने कहा कि तुमको इतनी जल्दी उम्र में आ गई, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो क्या तो पेशेंट या सपोज पेशेंट वहाँ पर डायबिटीज की नहीं भी आता और पेशेंट 30-35 में आते हैं, देयर ओबीज, इफ देयर फैमिली इज पॉजिटिव, वी गाइड हिम you are getting the chances of the diabetes is much more than the other your colleague or friends, because your parents are diabetic or your mother is diabetic. 50% chances that you may develop diabetes. ये कि तुम अभी से केयर करोगे तो 60 साल के बाद आएगी, अभी से केयर नहीं करोगे तो 2-3 साल में यू विल बी पेशेंट ऑफ डायबिटिक. Welcome to Doc Talk powered by CollectCare, a platform where we bring clinical insight, real-world experience, and meaningful conversations that matter to today's healthcare landscape. I'm Dr. Aradhya Giri, your host for today's conversation. Diabetes today is no longer confined to one age group or one generation. We're seeing its impact ripple across families, from grandparents to parents, and now increasingly to younger adults. This phenomenon, often referred to as generational diabetes, raises important questions about genetics, lifestyle transitions, early risk identification, and what clinicians and families can do differently. To explore this important topic, we are joined today by a senior physician with decades of hands-on experience in diabetes and cardiometabolic care. It is my privilege to welcome Dr. Rajiv Saxena to Doc Talk today. Dr. Saxena is MD in medicine with over 3.5 decades of clinical experience. He has been actively involved in the management of diabetes, hypertension, and cardiometabolic disorders, and has closely witnessed how diabetes patterns have evolved across generations in Indian families. He has served in government as well as private healthcare settings, has been a speaker at multiple CMEs, and is a life member of leading professional bodies, including the Indian Medical Association, Association of Physicians of India, and the Diabetic Society of India. His vast clinical exposure and long-term follow-up of patients make his perspective especially valuable when we talk about how diabetes travels and transforms across generations. Dr. Saxena, thank you for joining us. Welcome. So to begin with, Dr. Saxena, you have been practicing for over 38 years now. So Yeah. Start with your journey. आप हमें वापस लेकर जाइए, डॉक्टर बनने का आइडिया कैसे आया, डायबिटीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग या डायबिटीज एज अ स्पेशलिटी आपने चूज की, वो आपकी जर्नी, वॉक अस थ्रू द एंटायर जर्नी. My age is 73 and I'm practicing since 1975. So at that time, it was very difficult to diagnose the diabetes. The methods, they are very less. Only when we are doing the house job in medicine. So we'll have to do the urine test for all the patients at the side lab. Because the blood sugar monitoring is done only once a week or twice a week. So we'll have to manage not according to the blood sugar, but according to the urine sugar. The aim is, if it is urine sugar is nil, this means patient has got a control less than blood sugar is less than 180 milligram. So we have managed so many diabetic coma patient and diabetic ketoacidosis patient, young lady with a diabetes with repeated urine sugar examination and ketone bodies examination rather than blood sugar examination. And we have said mostly, I have never seen any patient died. My patient, I have saved all the patients with this method, because the blood sugar in the time of the district hospital and first, the chances are there was no bedside regulation of to know the blood sugar. तो टेक्नीशियन आता था once a week, twice a week, तब जाके वो शुगर कंट्रोल होती थी, और HbA1c तो होता ही नहीं था. When in 83, then I was doing MD medicine, so my topic was HbA1c. At the time, HbA1c was introduced, and I calculated the HbA1c myself in the lab and decided that it has got to know whether the diabetes is controlled or not. So it last 3 months data. So HbA1c, then it has been started. तभी मार्केट में HbA1c का डायग्नोस आने में फिर भी 3 to 4 years लगे. मतलब आई थिंक इट वाज HbA1c 90 के करीब आया टू डायग्नोस, जबकि मेरी थीसिस 84 में कंप्लीट हो गई थी.
तो Incredible. हाँ, तो उस समय कभी कभी मेरे सीनियर एंड्रोगाइज से डिस्कशन होता है, तो मैं उनसे बोलता हूँ, मैंने कहा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमने विदाउट ब्लड शुगर वी हैव मैनेज, वी नो द कीटोन बॉडीज हाउ टू चेक बाय द यूरिन एग्जामिनेशन एंड द शुगर, एंड वी मैनेज, वी हैव टू मेंटेन द हाइड्रेशन एंड वी कंट्रोल द शुगर, वी मेंटेन वेरी नाइसली विदाउट एनी ब्लड शुगर, रिपीटेडली ब्लड शुगर, नाउअडेज वी डू इट। तो आज तक आजकल तो इन्फ्यूजन मेथड से करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं ना, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो अच्छा, दूसरी चीजें, we are seeing diabetic cases, my 50 to 60% cases are diabetic, or the diabetes is very prevalent in our country. सर, तो इसी कंटेक्स्ट में जब हम Hmm. जनरेशनल डायबिटीज कहते हैं, तो क्लिनिकल Yeah. प्रैक्टिस में इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? और आज के सिनेरियो कितना अलग है एज कंपेयर टू जब आपने शुरू किया अपना प्रैक्टिस? जब पेशेंट्स आते हैं तो वी टेक द हिस्ट्री, whether your father, mother, some forefather they are diabetic, they usually say, most of the say that yes my father, actually हम लोग उस era में हैं जब फादर मदर डेथ हो जाती थी, they don't know that they have got a diabetes and they are dying of the diabetes, they have not control the diabetes, it was very difficult. तो तो हम बताते हैं कि व्हाट इज जेनेटिकल डिस्पोजिशन ऑफ द डायबिटीज। तो मैंने कहा अगर मदर डायबिटिक है या फादर डायबिटिक है या दोनों डायबिटीज है, इफ यू आर 5 ब्रदर्स या 6 ब्रदर्स, उस जमाने में 5-6 भाई बहन होते थे, मैंने कहा 50% के चांसेस डायबिटीज के रहते हैं। तो इसलिए इट डिपेंड्स कि डायबिटीज होगी, लेकिन कब प्रिसिपिटेट होगी, डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल द थिंग्स। तो कई लोग जैसे आजकल के ज़माने में दे यंग पर्सन, दे आर वेरी ओबीस, दे डोंट टेक केयर ऑफ द एक्सरसाइज, दे आर ड्राइविंग द व्हीकल्स, दे डू नॉट डू बाइसिकल, साइकिल खत्म ही हो गई, साइकिल चलाते नहीं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ओबीस रहते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी जनरेशन में डायबिटीज अर्ली प्रेसिपिटेट हो गई, हम लोग की जनरेशन, मेरी जनरेशन में डायबिटीज 60 साल के बाद आती थी, बिकॉज हम लोग साइकिल चलाते थे, पैदल घूमना खूब रहता था, मोटरसाइकिल नहीं थी, कारें नहीं थी, तो भाग भाग के बस पकड़ते थे, तो फिजिकल एक्सरसाइज होती रहती थी। और पता है फादर को डायबिटीज है, तो पेरेंट्स को यदि डायबिटीज रहती तो उसी समय से पूरे बच्चों को ऑटोमेटिकली मीठा कम हो जाता था, पूरे घर में सबके लिए एक सा खाना बनता था, तो मिठाई कम हो जाती थी। तो इसलिए उस जमाने में, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, माई मदर वॉज डायबिटिक, आई डेवलप डायबिटीज एज व्हेन आई वाज 60 ईयर्स ओल्ड, और फिर 60 ईयर से कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छा कंट्रोल करके रखते हैं। तो आजकल यंग जनरेशन में डायबिटीज का कारण ये है कि बिकॉज ऑफ देयर ओबेसिटी दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ। जब आते हैं हमारे पास में तो फ्रेंक डायबिटीज लेके आते हैं, इवन इन 30-35 ईयर्स डायबिटीज, दे हैव गॉट ओवरवेट, ओबेसिटी इज देयर। उनकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि हाँ हमारी मदर को थी, तो मैंने कहा कि तुमको इतनी जल्दी उम्र में आ गई, तुम्हें ध्यान होना चाहिए। तो कल तो पेशेंट, या सपोज पेशेंट वहाँ पर डायबिटीज की नहीं भी आता, और पेशेंट 30-35 में आते हैं, देयर ओबीज, इफ देयर फैमिली इज पॉजिटिव, तो वी गाइड हिम कि you are getting the chances of the diabetes is much more than your colleague or friends, because your parents are diabetic or your mother is diabetic. लेकिन 50% चांसेस दैट यू में डेवलप डायबिटीज। ये है कि तुम अभी से केयर करोगे तो 60 साल के बाद आएगी, अभी से केयर नहीं करोगे तो 2-3 साल में यू पेशेंट ऑफ डायबिटिक, काउंसलिंग बहुत करना पड़ता है। आपके क्लिनिक में ऐसा कितनी बार हुआ है कि पहले पेरेंट्स आए, फिर कुछ सालों बाद उनके बच्चे भी सेम प्रॉब्लम के साथ आए? वो ये तो trend आजकल सबसे common हो गया इस है। एज में तो पीढ़ी दर पीढ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो वी नो उनके पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को लेके आते हैं डायबिटीज, उसके बाद खुद आते हैं, दे हैव डेवलप्ड डायबिटीज। तो काउंसलिंग इज मस्ट। तो वी हैव सीन द जनरेशंस वे आर गेटिंग डायबिटीज। तो डायबिटीज डेफिनेटली इज ए जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लेकिन उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। और आजकल इस जमाने में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स, without the history of the generation, patient may get diabetes, they are getting diabetes now। उनकी आने वाली जो पीढ़ी होगी, they may have diabetes, 50% of diabetes। लेकिन अभी जो बच्चों को हो रहा है डायबिटीज है या सडन एकदम होता है, it is not always genetically, chances is much with genetical disposition, but without genetical disposition they may develop diabetes due to other factors, other environmental factors, they may develop diabetes। So when a patient says ki, even my father had diabetes, my grandfather had diabetes, so genetics is a predisposition. Definitely, definitely।
लेकिन चांसेस। वो फैमिली का ओवरऑल लाइफस्टाइल, डिनर टेबल पे क्या बना है, ये भी मैटर करता है. हाउ डज दिस प्ले अ रोल इन? थिंग इज दैट द जनरेशन गैप इज देयर। हमारे पीरियड में हमें मालूम था कि फादर मदर डायबिटिक है, तो उस हिसाब से डाइट पूरे घर में चल जाती थी, ये नहीं बनना, शुगर नहीं खाना। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे दे आर, उनकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी रहती है, दे आर डूइंग सो मेनी वर्क्स समथिंग, दे डू नॉट बॉदर दैट माय फादर इज डायबिटिक, आई एम डेवलप डायबिटिस। जब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फॉर सम अदर रीजन दे कम टू द फिजिशियन एंड वी चेक इन रूटीन एग्जामिनेशन एलजी1एसी, तो कहते हैं कि इट हैज बीन, you are near diabetes or you are developed pre-diabetic, you can develop diabetes very early, you should take care of। तो ये फिर हिस्ट्री देते हैं, तो मान लो उनके फादर डायबिटीज के में, तो पेशेंट को हम थोड़ा ओबीज होते हैं आफ्टर 30 years, like lipid profile, we see the lipid profile also and diabetes। if the parents are diabetic, उनको अभी से हम लोग प्रिकॉशंस बताना शुरू कर देते हैं कि व्हाट टू डू, कि दे शुड डेवलप, डायबिटीज डेफिनेटली आएगी, और प्री डायबिटिक हो तो तुम्हारा एच1 6.2 है, 6.3 आ रहा, तो इसका मतलब अभी से अपन को केयर करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें डायबिटीज आएगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा डिले आए, मेडिसिन अभी खाना नहीं पड़े। तो वो डर जाते हैं और समझते हैं, तो दे डू समथिंग। तो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के केस में एक्चुअली कब से अलर्ट होना चाहिए? आज भी काफी यंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपने 20-30s में भी बोलते हैं कि ये तो बुजुर्ग बीमारी है. आप उन्हें नहीं, क्या कहना हाँ, चाहेंगे? अब उनको जब हम लोग किसी दूसरे कारण से आते हैं, तो रूटीन सारे इन्वेस्टिंग कराते हैं, तब उनको बताते हैं, उस समय हिस्ट्री लेते हैं, भाई यू आर एच1एसी जो है, इट इज अवर टुवर्ड बॉर्डर लाइन डायबिटिक, और शुगर तुम्हारी 140 या फास्टिंग तुम्हारी 120 आ रही है। तो जब फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, तो फादर डायबिटिक है या मदर डायबिटिक है, तो फिर वे एक्सप्लेन देम कि यू आर प्री डायबिटिक एरिया, एट एनी टाइम द फ्रैंक डायबिटीज में डेवलप टू यू वेरी अर्ली इफ यू नॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो बताना तो पड़ता है, समझाना पड़ता है, रिलेटेड टू लॉट ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि डेफिनेटली जो 60 साल में आना चाहिए, और 35, 36, 40 के अंदर ही उनको डायबिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती है, विल हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन। देयर आर सो मेनी केसेस इन दिस एरा, इन दिस एज में, so 35 to 40 they are diabetic, not pre-diabetic but diabetic, and will have to start some medicine definitely। So there's this term metabolic memory. Yeah, कहा जाता है कि डायबिटीज का नुकसान डायग्नोसिस से काफी पहले शुरू हो जाता है. तो आप हो जाता है, बताना पड़ता है कि इट इज साइलेंट किलर, Yes. चुपचाप अंदर ही अंदर तुम्हें निपटाती रहेगी, इस समझाना पड़ता है। So I want you to tell us what is metabolic memory, and फैमिली हिस्ट्री वालों के लिए कॉन्सेप्ट और ज्यादा डेंजरस क्यों हो जाता है? फैमिली तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, जेनेटिकली डिस्पोजिंग तो होती है, और कब डेवलप होती है मेटाबॉलिक, कब उनको डेवलप होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर वर्किंग कैपेसिटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि इफ यू विल नॉट कंट्रोल द योरसेल्फ, द डायबिटिक विल कम अर्ली एंड इट विल डिस्टर्ब योर मेंटल फंक्शंस एट एनी एज। तो जरूरी नहीं कि अपन बुढ़ापे में जाएं, यू मे डेवलप रिसेंट मेमोरी लॉस, अर्ली एज में 60-70 में यू डेवलप पार्शियल डिमेंशिया और अल्जाइमर्स अर्लियर देन द अदर पेशेंट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। वो केयरलेस यदि रहेंगे तो परेशानी होगी, तो उनको समझाना तो पड़ता है। इट इज ओनली काउंसलिंग इन काउंसलिंग, लेकिन वी आर अवेयर, उसको पेशेंट्स को इस टाइप से आते हैं जो बॉर्डर डायबिटीज होती है, उनको हम बहुत ऑफर करते हैं, उनका बराबर हर 3 महीने में चेक करके देखते रहते हैं कि वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट। वेट चेक करना है, ओबेसिटी का पॉइंट है उसे देखना है, एक्सरसाइज बताना है, डाइट कंट्रोल करना है, उनकी सेडेंटरी लाइफ, फास्ट फूड कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो विल हैव टू कंट्रोल, उनको बताना पड़ता है, अगर जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव स्ट्रांगली रहती है तो। और जिनकी नहीं रहती तो उन पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना पड़ता कि उनको डायबिटीज हो सकती है, लेकिन संभावना कम है, या उनके फोर फादर से किसी होगी बट दे डोंट नो इट। फर्स्ट टाइम दे डोंट नो कि सब मेरे फादर को तो नहीं थी, लेकिन मेरे दादाजी को होगी, बट आई डोंट रिमेम्बर। तो जेनेटिकली डिस्पोजिशन के चांसेस बहुत रहते हैं, और अगर बच्चे 5-6 हैं तो 50% किड्स, तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे दूसरे भाई बहनों का भी चेक कराओ 40 ईयर्स के बाद ईयरली, अगर नहीं है डायबिटीज तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज है, दे मस्ट गेट एवरी ईयर शुगर एंड एच1 चेकअप, ताकि जब भी जैसे ही हो उसको कर सके। My paternal grandmother had diabetes. Now I think even I should get screened every year. हाँ,
तो ईयरली चेकअप होना चाहिए और एट द एज ऑफ 35 ईयर, आजकल के ज़माने में 35 के बाद ईयरली चेकअप करते रहना चाहिए, डेफिनेटली। सर, सो मान लीजिए आपके क्लिनिक में एक 25-year-old, या मैं ही, like I'm 26. Now, if I come to your clinic and I say, like I said right now, my granny had diabetes. So what can I do? मेडिसिन से अलग, बट लाइफस्टाइल के लेवल पर मैं क्या क्या कर सकती हूँ कि मुझे कभी ना हो? It needs a lot of counseling. If the patient gives the history and age of 25, 26, no diabetes, not a pre-diabetic, but if has got, ये बताना पड़ेगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें डायबिटीज ना हो जल्दी, then you will have to keep maintain your weight first and foremost. Second thing, 25 साल की 30 साल तक एज में जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब भी कोई परेशानी होती है किसी कारण से तुम डॉक्टर के पास जाती हो तो अपना शुगर जरूर चेक करें अक्सर। कब जिंदगी के कब मोड़ पे भगवान मिल जाए नहीं कह सकते, ऐसी डायबिटीज है कब मोड़ पे तो प्रभु डायबिटीज में प्रकट हो जाए नहीं कह सकते। तो इसीलिए जब भी डॉक्टर तुम्हें कोई चेकअप के लिए बोलते हैं या सपोज यू गॉट अ फीवर, एट द टाइम यू मस्ट गेट अ ब्लड शुगर आल्सो। तो ये दिस इज द ओनली वे, अदरवाइज नहीं तो अदरवाइज पेशेंट डर जाएंगे, बहुत डर जाते हैं। तो एक्सटेंड करते हैं कि अपन एक बार बीच दिन चेकअप कराते रहें, देखते रहें। और चूंकि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है 35 एज के बाद तो अपन को ईयरली कराना ही है कंपलसरी, अपन करा के देखें। वो वेट चेक करते रहें, वेट नहीं बढ़ना चाहिए और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब फैक्टर्स रहते हैं जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। आप डायबिटिक नहीं हो लेकिन आपका शरीर में इंसुलिन हो रहा है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, तो आपको फॉस्फेट, पाम ऑयल, ये सब चीजें आपको बंद करना है। तो आपको जल्दी प्रिस्क्रिप्टेड नहीं होगी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, क्योंकि घर में खाना नहीं खाते, बाहर नाश्ता करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि घर में तुम्हारा नाश्ता नहीं बनता तो बाहर जाकर खाते हो। दे डोंट यूज द प्रॉपर ऑयल, एक ही ऑयल चेंज होता रहता है, वही ऑयल रिकॉर्ड होता है। जनरेशन ये हो गया कि आजकल उनको घर से नाश्ता करके निकलते हैं, खाना लंच ऑफिस के अंदर ही मिल जाता है उनको। तो what they are eating and what they are giving, which oil they are using, which type of thing, we don't know. It is all sort of fast food. So fast food consumption is more. That is why the young age getting diabetes and other complications are heart attack. We are seeing the patient, very young patient with heart attack. It is because of the lifestyle changes. So we'll have to modify the lifestyle. We'll have to explain that. If their family history is positive for diabetes or heart disease, cardiovascular disease, तो विल हैव टू, अभी से उनको समझाना पड़ता है कैसे अपन को मॉडिफाई करना है आप अपने आप को, लाइफस्टाइल को। तो इन चीजों को 60 साल की उम्र के बाद तक खींचा जा सकता है। अमिताभ बच्चन, I'm glad I'm hosting this episode because मुझे कितना ज्यादा इंसाइट मिल रहा है अपने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। साइकिल रखो घर के अंदर और रोज आधा घंटा साइकिल पे 200 कैलोरी खर्च करना शुरू करो अभी से ही। बाहर घूमने जा नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता, आजकल लाइफस्टाइल आप इतने बिजी रहते हैं जॉब में, तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। yes. वो बोलते सिर्फ योगा से आपकी ज्वाइंट्स की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन कैलोरी बर्न करना बहुत जरूरी है। तो कैलोरी बर्न करने के लिए फास्ट वॉकिंग, 20 मिनट्स फास्ट वॉकिंग, सो दैट आपका हार्ट रेट बढ़े, तो आपका हार्ट मसल आपकी एक्टिव होगी और बढ़िया होगी, और आपकी कैलोरीज बर्न होगी तो आप डायबिटीज जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होगी। वो चीजें नहीं समझते लोग। तो बच्चे क्या फादर मदर को देखते हैं ना कि दे आर सो एक्टिव, स्टिल दे आर डूइंग अपना, दे आर बिजी, बट इन द मॉर्निंग दे आर डूइंग द एक्सरसाइज, दे आर डूइंग, दे हैव गॉट अ ट्रेडमिल इन देयर होम, दे आर डूइंग द साइकिलिंग। तो मैंने देखा अमेरिका में जाते हैं बच्चे, कोई गेम्स खेलते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, सैटरडे संडे जिम जाते हैं। स्टिल माय सन एंड डॉटर जो है दे आर कीपिंग एवरीथिंग कंट्रोल। को मालूम है फादर इज डायबिटिक, हमें डायबिटिक होना है लेकिन लेट हो गई, तो वो बच्चों को समझ में आ जाती है चीज। वो दैट इज दैट समझ, इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि अपन को एक्सरसाइज और घूमना कितना जरूरी है, तो बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं, क्या चीज खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। तो अभी से आदत, अच्छा मीठे खाने को कहते हैं हमें डायबिटीज नहीं, हम क्यों खाएं? हम लोग मीठा खाओगे ज्यादा तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो डायबिटीज अभी नहीं है तो इट विल प्रेसिपिटेट वेरी अर्ली। इसीलिए हर चीज में कंट्रोल रखना पड़ता, चखो खाओ जाओ खाओ मत। You've completely motivated me to never skip a gym day again. So one question I'll ask you based on, in your clinical practice, is there a vast difference between the diagnosis, prognosis, and the projection of diabetes
in a male patient versus a female patient? In female patients में अगर family history positive है तो they become early. Only thing is type 1 diabetes. If there is type 1 diabetes, there is no need for any family history. Type 1 diabetes is God gift is because of the not developing or not secreting insulin in the body उसके कारण. लेकिन टाइप 2 डायबिटीज यदि अर्ली प्रेजेंट होती है या मोदी जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मिलिटर, तो इट इज डेफिनेटली मेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप दिस मोदी ऑनसेट rather than female. Female has got a very protective hormone. लेकिन if during delivery they are diagnosed with diabetes or something happens, they take the insulin or something during diabetes या pregnancy diabetes जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों को लाइफ में कभी भी डायबिटीज प्रेजेंट होती रहती है, तो उनको हम ये बताते हैं कि अभी तुम्हारी डायबिटीज कंट्रोल में बच्चों के, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डायबिटीज लाइफ में कभी नहीं होगी. गेस्टेशन डायबिटीज है, लेकिन फिर भी ईयरली यू हैव टू चेक फॉर डायबिटीज. एट एनी टाइम इट कैन प्रेसिपिटेट. ये है कि जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनका डोज रेगुलेट करना पड़ता है, उनको मेडिसिन ऐसी देना पड़ता है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन क्या होता है कि डॉक्टर के पास कम आना होता है, दवाई खाते रहते हैं, दे लैंडेड एट द सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनकी डाइट कम हो जाती है, उतना घूमना फिरना नहीं हो पाता, डोज वही खाते रहते हैं. तो हम लोगों को जीनेटिक क्लिनिक चलानी पड़ती है कि तुम लोगों को दवाइयाँ किस हिसाब से देना है कि तुम ये नहीं जाओ, क्योंकि आप वो जवान नहीं रहे, वो डाइट नहीं है जो पहले डाइट, जबकि दवाई वही ले रहे हैं वो. तो दिस इज जॉब. So we'll have to take very care when we treat the patient. We'll have to see all these factors. Yes. So we talked about differentiation between, male and female, and then younger patients, older patients. Similarly, usually males are more prone to develop diabetes rather than female, because the female has got a more activity in the home rather than the male. Yes. कम से कम उनका जो है डेली एक्टिविटीज घर की इतनी रहती हैं कि 7,000 से 8,000 स्टेप्स यदि वो बांधे और करें तो इतने हो जाते हैं फीमेल के घर के अंदर, जो कि मेल के नहीं कर पाते. इसलिए उनको डायबिटीज होती भी है तो काफ़ी लेट प्रेजेंटेशन होता है, जबकि मेल जल्दी आ जाते हैं. अच्छा, बाहर भी लेडीज बहुत कम गाड़ियाँ चलाना है, उसमें जाना बहुत कम परसेंटेज रहती हैं पढ़े लिखे छोटे, बाकी सब गाँव में अपना लेके जाएंगी, वो खेत तक या खाना देने जा रही हैं, तो उनका वॉकिंग वही सब चलता रहता है. तो मैंने गाँव में लेडीज को बहुत कम देखा है दे आर डेवलपिंग डायबिटीज, जब तक बहुत स्ट्रांग क्लिनिक हो, काफ़ी सीनियर बहुत एज में देखा. लेकिन मेल से बहुत जल्दी देखा, बहुत देखे, मतलब मेल्स प्रेडोमिनेटिंग और फीमेल दे आर लेस, रादर मेल्स आर मोर देन द फीमेल, डेफिनेटली. This was my third question. Do you see differentiation between rural patients and urban patients? Yeah, definitely. Urban patients are more prone to develop diabetes rather than the rural patients. The rural patient, they are eating less, उनका फूड लिमिटेड है, दाल रोटी और प्याज, समझ आ रहा है डिफरेंस. क्योंकि वो पैदल खेत तक जाते हैं, खेत में काफी घूमते करते हैं, तो इन लोगों को अगर डायबिटीज होती है कई पेशेंट को, बहुत कम है, मतलब अर्बन के हिसाब से रूरल में कम है. इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम, 60 से 50-60 साल की उम्र में उनको डायबिटीज अगर होना होती तो होती. लेकिन अर्बन एरिया में तो बहुत जल्दी 35-40 तो मैक्सिमम पेशेंट डायबिटिक डिक्लेयर हो ही जाते हैं आजकल ज़माने में. आजकल हमारे एज में छोड़ दो कि 60 साल में हम शुरू हुए, बहुत जल्दी डेवलप होती है. तो अर्बन दे आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज रादर देन द विलेजेस. Yeah. So, very insightful, sir. Words now that we'll start wrapping up. And when we wrap up, we have this fun rapid fire round. Yeah. मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी और इंस्टेंटली आपके दिमाग में जो आएगा आप वो आंसर करेंगे. Definitely. So we call this rapid fire. We'll quickly give questions. Yeah. पोहा या पराठा? पोहा या पराठा आपका आइडियल ब्रेकफास्ट? Poha is better rather than paratha. One paratha is equal to the 4 chapatis. I prefer poha. Okay. Next question. The weirdest place where someone has asked you for medical advice? Really, I have to give advice to so many relatives and patients about the diabetes, what to do, what not to do, what is your restriction. So I always busy. But this is my time to reply them. So in clinical practice, usually at the time of clinic and hospitalized patient, or in the night time, I love to treat so many my colleagues, relatives, and things for the diabetes, to manage the diabetes online.
Okay. Sir, so if you were not a doctor, what would you be doing? अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करता? पता नहीं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ या बड़ा हुआ तो मेरे पास दिमाग में यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। दूसरा प्रोफेशन मैंने सोचा ही नहीं कभी लाइफ में। I have never think of other profession, and God is great. So I thought to be a doctor, and I became a doctor. I cleared the PMT first attempt, and I became a doctor. And this is the great profession. I enjoy every moment with my patients to help them and to manage them. So that my brain remains active. I think 73 years I can practice up to the 78 years, up to 80 years. I'm glad Like you this. didn't choose any other profession, sir. We need more doctors like you. हाँ, बट आई कुड नॉट थिंक ऑफ अदर प्रोफेशन। कभी लाइफ में सोचा ही नहीं। मतलब मेरा हॉबीज ही नहीं थी। म्यूजिक इज माय हॉबी। जैसे आई कैन प्ले बांसुरी, आई कैन प्ले मौथरन, आई कैन प्ले तबला, बिकॉज ऑफ माय फादर। उन्होंने टीचर रख के सब सिखाया। तो ड्यूरिंग स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस, आई गो फॉर बांसुरी, मौथरन बजाना, ये सब चीजें। लेकिन प्रोफेशन आई कुड नॉट थिंक अदर प्रोफेशन देन मेडिकल प्रोफेशन। आई कुड नॉट थिंक। Completely understandable, sir. हाँ, पूरा पूरा डिवोटिव टू माय प्रोफेशन। Moving on to the next question. या उज्जैन की एक चीज जो आप कभी किसी मेट्रो सिटी के लिए कभी ट्रेड नहीं कर सकते, उज्जैन की ऐसी चीज जो आप जो कभी किसी मेट्रो सिटी के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब उज्जैन की ऐसी क्या बात है जो आप कभी उज्जैन छोड़ के नहीं जाओगे? तो देयर आर टू रीजंस। दिस इज माय बर्थ प्लेस, though I studied MBBS from Bhopal and to MD from Jabalpur, but this Ujjain was my birthplace. My father and mother started his career from Ujjain Madhu College, Ujjain se, as a professor. So this was his desire and mother's desire that I should settle in Ujjain and to teach the Ujjain pupil at the Nagari of Mahakal. And when I was preparing for the PMT, I came here just to relax myself with my so many friends, girlfriends, and so many friends. I saw Lord Shiva in my dream. I got up, I have never gone to the mandir, and I saw बिल्कुल Lord Shiva को देखा. When I appeared in the examination, I got the PMT selected. And after doing MBBS, my father said that because you have done MBBS and MD, now I will transfer, I will force you to settle in Ujjain. And the God has given me this opportunity to settle in Ujjain. I cannot think over to the metro or somewhere else. Now I remember the God, जो भगवान ने मुझे उस समय दर्शन दिए थे, it was that he wanted I should settle here. Otherwise, ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं बहुत ज्यादा भगवान पे डिवोटी हूँ या भगवान का बहुत भक्त हूँ। मंदिर कभी गए नहीं, मंदिर जाते तो खेलने जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लॉर्ड शिवा देखे, और अब जब मैं रियलाइज करता हूँ कि शायद इसलिए देखे कि वो चाहते थे कि मैं यहाँ हूँ उज्जैन। दैट्स व्हाई आई एम इन उज्जैन ट्रीटिंग माय सब पेशेंट। That's amazing, sir. You were literally guided by the universe. या आज मैं कभी बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता भगवान पे, लेकिन अब इस समझ में आता है कि उज्जैन में इतने साल निकाल दिए। It was God desire to settle me here. That's why उन्होंने दर्शन दिए, इतने दिए। बहुत कम ऐसा होता, उसके बाद कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन उन्होंने PMT मिटवाया और पास हुए और यहाँ आ गए। God wanted quality healthcare in Ujjain. हाँ। So, अब sir, उज्जैन धीरे धीरे मेट्रो होता जा रहा है। तभी ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट। What metro physicians they treat like some other way, and Ujjain they are middle class. है ना? We are not treating the metros. You got a lot of earning members. We have got a lot of villages covering us. So here the treatment is different. What the doctors treat in the metros. yeah. Sir, so wrapping the entire session up with one last question. So, Yeah. एक लाइन कंप्लीट कीजिए। एक लंबी और हेल्दी जिंदगी का राज है? Regular exercise and to control the diet and keep your HbA1c around 7 or below 7. If you want to fight with the diabetes and to keep yourself healthy till the age of Amitabh Bachchan and Dharmendra,
So you'll have to keep the HbA1c between 6 to 7 rather than 7 more than 7 and keep. मैं पेशेंट से कहता हूँ 1 घंटा अपने लिए निकालना जरूरी है. 1 hour for your exercise, it is a must. Then you can live longer. Thank you. Even in this stage, I try to get exercise for at least 1 hour. That's really inspirational. My our brothers, they are very healthy. They keep their exercise and everything in proper time. They are very smart. सब हमारे देवानंद के फैन है. आशा पारिक को भी घर पे बुलाया था भोपाल में हमारे यहाँ फंक्शन में. तो वे प्रेरणा लेते हैं. जब इफ अमिताभ बच्चन कैन बी सो स्ट्रांग एंड कीप हिमसेल्फ सो एक्टिव, व्हाई कांट वी? इफ धर्मेंद्र 89 तक खींच सकता है तो व्हाई कांट वी? व्हाट इज देयर लाइफ स्टाइल? तो उनकी जो निगेटिव पॉइंट्स है, जैसे धर्मेंद्र यूज्ड टू ड्रिंक, वी डोंट टेक ड्रिंक. उनकी जो पॉजिटिव चीज है उसको सोच के उसको देख के वी हैव टू मेक द लाइफ स्टाइल. पेशेंट को ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने गो सीधा कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन दौड़ के आता है 83 एज का. ही कैन कम, तो व्हाई कांट यू कम? मैंने कहा तुम 40 में 70 के दिख रहे हो तो फिर 70 तक तो सोचोगे मर जाए तो अच्छा है. वो एटीट्यूड पेशेंट को समझाता हूँ. जिस चीजें मिस करना पड़ता है. मैं एक पेशेंट कम से कम 20 मिनट खाता है मेरा का, डायबिटिक वेरी, तो उनको सब समझाना पड़ता है. अदरवाइज देखो डिप्रेशन 35 एज में अगर डायबिटीज हो गई दे डिप्रेस. एक पेशेंट तो रोने लगी. मैंने कहा भगवान तुम्हें ऐसी डिजीज दी है. फिर एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं अनिल कपूर की लड़की इंसुलिन लगाती है तो कितने अच्छे एक्ट्रेस है, पूरी चलती है. तो पेशेंट को एग्जाम्पल लेना पड़ता है तब वो चीयर अप होते हैं. तो इंसुलिन लगाने से डरते हैं. सब बताना पड़ता है. Thank you so much, sir. Your perspective, your advice on everything from health to life is really amazing and really inspirational to everyone. Nice talking you. Same here, sir. तो तुम्हारे फैमिली से पॉजिटिव, यू टेक योरसेल्फ आल्सो. थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड यू कैन रन ए वेरी गुड लाइफ. ये पढ़ना होना चाहिए.